children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are fine and doing very well. So children, did you get your bags back? क्या आपको आपके bags मिल गए हैं? Have you gone through your worksheets, your notebooks, your books, your activity work? So I am sure आपने वो check किया होगा. Now we are in our full mode of studies. हम अपनी पूरी पढ़ाई के लिए तैयार हैं. As UTs are approaching, they might be start from 27th of July. हमारे यूनिट टेस्ट 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं. सो अब हम पूरे जोर से अपनी पढ़ाई के लिए रेडी हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी विल डिस्कस. वी विल स्टार्ट विद आवर पासवर्ड, दैट इज एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी चिल्ड्रन? एनर्जी इज एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी वो ऊर्जा या शक्ति या ताकत होती है जो हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करती है. I have taken this word from our EVS chapter that we are doing these days, chapter number 6, food we eat. So you all know that food gives us energy. So एक और तरह का एनर्जी भी होता है. Have you heard of sun's energy, solar energy, wind energy और flowing waters energy? ये भी वो एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. सो इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है सन की एनर्जी से, विंड की एनर्जी से. जिस तरह से विंड ब्लो करती है और जिस तरह से वाटर फ्लो करता है उस स्पीड से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. वो भी एनर्जी होती है. दैट यू मस्ट नो. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी विल हैव अ क्विक रिकैप ऑफ अवर चैप्टर नंबर 2, द फ्लाई, दैट वी हैड स्टार्टेड बिफोर समर वेकेशन. सो उसके रिकैप के बाद देन वी विल हैव अ रिकैप ऑफ स्पेल ड्रिल ऑल्सो. वो भी हमने पहले किया था बट हम आज उसका एक रिकैप ले लेंगे. देन वी विल डू वन वर्ड टाइप आंसर, यू कैन से, इन अवर इंग्लिश नोटबुक. ये वर्ड मीनिंग्स की तरह ही होंगे. मैंने थोड़ा सा इसे शफल कर दिया है सो दैट इट कैन बी इजी फॉर यू. एंड देन अवर होमवर्क. एज यू नो दैट टुडे इज होमवर्क गिविंग डे फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट अस स्टार्ट. Yes children, as you remember that we had discussed and even done our bookwork exercises of lesson number 2 even before our summer vacation. But it has been a long time now. उसमें काफ़ी समय हो गया है. So we will have a quick recap of lesson number 2, the fly. So this is lesson number 2, the fly. This is the introduction page of our lesson. The lesson number 2 is starting from page number 16. Here you can see the pics of land and water animals. यहाँ कुछ pics हैं जो land and water animals की हैं. I want to tell you, and you know very well children, that land animals are the animals that live on land, whereas water animals or aquatic animals are the animals that live in water. ये आप सबको पता है. Here you can see the pics of some animals. We can easily tell, हम बता सकते हैं कि ये लैंड एनिमल्स हैं या वाटर एनिमल्स है. सो वी हैव बीन गिवन सम नेम्स. हमें कुछ नेम्स भी दिए गए हैं. लॉयन इज़ अ लैंड एनिमल, ऑक्टोपस इज़ वाटर और एक्वेटिक एनिमल, आउल इज़ लैंड और एरियल एनिमल, whale is water animal, sparrow is land animal, starfish is water animal. So I want to tell you more about some examples of land and water animals. So children, there are many examples of land or water animals. Some of the examples you should know that land animals हैं elephant, dog, deer, zebra, giraffe. You know about all of these land animals. आप इनके बारे में जानते हैं. Some examples of aquatic or water animals can be fish. There are many kinds of fish. Octopus, which has 8 legs, whale, lobster, seal, walrus. So these are some examples of land or water animals. Now about our main character of lesson number 2, that is the fly. वो fly है, वो हमारे lesson का main character है. What kind of animal is fly? वो किस तरह का animal है? I am going to tell you.
So children, main character of our lesson number 2 is the fly. It's a fly. वो fly है हमारे lesson number 2 का main character. What kind of animal is fly? वो किस तरह का animal है? वो insect तो है ही, land animal भी है ही, but it is also considered as an aerial animal. उसे aerial animal भी हम कहेंगे. So what are aerial animals? I want to tell you something about that. Aerial animals are those that can soar, fly or glide naturally in the air. ऐसे एनिमल्स कहे जाते हैं जो कि बहुत ऊंचा उड़ते हैं, स्मूथली उड़ते हैं नेचुरली एयर में, उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर सर्टेन बर्ड्स, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ तरह के बर्ड्स हैं. इंसेक्ट्स हैं, कीट प्राणी हैं. बैट्स हैं, जिसे हम हिंदी में चमगादड़ भी कहते हैं. उड़ती हुई स्क्विरल्स, फ्लाइंग स्क्विरल्स मतलब उड़ने वाली स्क्विरल्स हैं. आपने स्क्विरल्स तो देखी हैं, बट ये उड़ने वाली स्क्विरल्स हैं. ऐसी एंट्स, ऐसी चींटियाँ जो उड़ती हैं, और भी कुछ. ये सब एरियल एनिमल्स भी कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज दे फ्लाई हाई इन द एयर नेचुरली. वो अपने आप नेचुरली एयर में फ्लाई करते हैं. सो हेयर यू कैन सी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो कि फ्लाई करते हैं. दिस इज़ द पिक ऑफ बैट, कि बैट है, चमगादड़ है. दिस इज़ द पिक ऑफ अ फ्लाइंग स्क्विरल, ये फ्लाइंग स्क्विरल है, उड़ती हुई स्क्विरल. ये आप टेल बुशी है जो आप देख सकते हैं, स्क्विरल की होती है. नॉर्मल हम देखते हैं गार्डन में, ट्री में के आसपास. दिस इज़ फ्लाइंग एंट. सो ये सब एरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं. और जो हमारा मेन कैरेक्टर है फ्लाई, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एरियल एनिमल. So now we will have a summary of our lesson number 2, the fly. So children, we will quickly recall what is the story behind our lesson number 2, that is the fly. So हम एक summary की तरह इसे revise करेंगे. It is the story about a tiny animal. वो एक tiny animal के बारे में है story. It woke up one morning and could not remember who it was. वो एक सुबह उठा टाइनी एनिमल और उसे याद ही नहीं आया वो कौन है. एंड व्हाट वाज इट्स नेम, और उसे अपना नाम भी याद नहीं आया. सो इट वेंट टू मैनी एनिमल्स, द ग्रास, द रिवर, एंड आस्क्ड देम इफ दे न्यू हु इट वाज. वो कई एनिमल्स के पास गया, ग्रास के पास गया, रिवर के पास गया और उनसे पूछा कि मुझे बता दो, कोई तो बता दो कि मेरा नाम क्या है. हेयर यू कैन सी उसने स्काई की तरफ देखा, पहले बर्ड से पूछा, स्काई की तरफ देखा, फिर काफ से पूछा, काफ इज़ अ बेबी ऑफ अ काव. फिर उसने काव से पूछा, बट काव ने भी उसे भगा दिया. देन उसने एक वुमेन से पूछा, उसने कहा कि आप ग्रास के पास जाओ. ग्रास ने उसे वाटर के पास भेजा, वाटर ने उसे टॉल ट्री के पास भेजा. टॉल ट्री ने कहा कि जो बर्ड है नेस्ट में, उससे पूछो अपना नाम, मुझे नहीं पता. तो बर्ड ने देखा उसे और कहा कि मुझे मत पूछो, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं उड़ना जानता हूँ. एंड देन क्या हुआ? When the bird said that it only knew one thing, that was to fly, hearing the words. ये वर्ड सुनते ही, क्या वर्ड्स थे वो? फ्लाई. द टाइनी एनिमल जम्प्ड अप विथ जॉय. उसे अपना नाम याद आ गया. इट वॉज वेरी हैप्पी एज इट नाउ रिकलेक्टेड इट्स नेम. वो उसे याद आ गया और वो बहुत खुश हुआ. वो नाम किसने याद दिलाया? बर्ड ने. बर्ड ने तो ऐसा ही बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, आई नो हाउ टू फ्लाई, आई ओनली नो हाउ टू फ्लाई. मुझे तो सिर्फ उड़ना पसंद है, मैं सिर्फ उड़ना जानता हूँ. इतना सुनते ही जो टाइनी एनिमल को अपना नेम याद आ गया. एंड व्हाट वाज इट्स नेम? उसका नेम क्या था? इट वाज अ फ्लाई. वो फ्लाई था. सो नाउ इट वाज वेरी हैप्पी. उसे अपना नाम याद आ गया, उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ. सो दिस वाज द स्टोरी behind the chapter number 2, that is the fly. So children, this is the spell drill of lesson number 2, the fly.
So you also know, and I want to tell you again, that we had already done the spell drill of lesson number 2 before our summer vacation. हमने ये काम summer vacation से पहले भी किया था, but when I checked your notebooks, I found that some of you have not written it. आप में से कुछ ने ये नहीं किया है, so it is for those who have not done this, they can note it down. तब आप ये कर सकते हैं. And if you have already done this, अगर आपने ये पहले से किया है, so you don't need to write it again. आपको ये फिर से नहीं करना है. So keep in mind कि आपको ये नहीं करना है अगर आपने पहले से किया है. And if you have not done this, अगर आपने नहीं किया है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. So one more thing I want to tell you, that if you start a new work, suppose आप word meanings लिख रहे हैं या question answers लिख रहे हैं, तो word meanings जिस पेज पर फिनिश होंगे उससे नेक्स्ट पेज पर आप क्वेश्चन आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे. कोई भी न्यू वर्क है उसकी हेडिंग के साथ, तब आप न्यू पेज पे स्टार्ट करेंगे. अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर, लेकिन न्यू वर्क होगा जैसे कि स्पेल ड्रिल है, देन वर्ड मीनिंग्स एंड देन क्वेश्चन आंसर्स, वो हमेशा आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे. सो फॉर दोज हु आर राइटिंग इट नाउ, वो फर्स्ट टाइम ये से लिख रहे हैं, so you have to write class work date as usual. At line 1 पे आप लिखेंगे lesson number 2. In the second line you will write the name of the lesson, that is the fly. In the third line you will write spell drill, and from the fourth line we will start writing the words. तो first word is tiny. tiny क्या होता है? छोटा, बहुत छोटा, very small. At number 2, rubbed. Rub मतलब रगड़ना, मलना. So sometimes when you get up, you rub your eyes. आप अपनी आंखें मलते हैं, कभी कभी आप उठते हैं. या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हम रब करते हैं, जो हमने वर्क किया है पेंसिल जिसे जो लिखा है उसे हम इरेजर से रब करते हैं. So it has many meanings. At number 3, wings. Wings मतलब पंख. At number 4, shiny. Shiny means चमकीला. So at number 5, spread. Spread मतलब फैल जाना, आगे बिखर जाना. So at number 6, forget. Forget मतलब fail to remember, भूल जाना. कुछ भी जो बात थी वो भूल गए, so you forget. At number 7, remember. Remember means याद आना. ये दोनों opposite हैं. Forget means भूल जाना, remember means याद रखना. remember means याद आ जाना, अपना जो हम भूल गए थे उसे याद आ जाना, that is remember. At number 8, flap. Flap means wave करना. जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स को, या फिर आपने हाउस फ्लाई तो देखी ही है, जो घर में होती है वो फ्लैप करती है विंग्स अपने. बर्ड्स फ्लैप करते हैं फड़फड़ाना. इसे एक दूसरा हिंदी में शब्द अर्थ है इसका, फड़फड़ाना, वेव करना, फड़फड़ाना. सो फ्लैप्ड. सो दिस वाज द स्पेल ड्रिल ऑफ अवर लेसन नंबर 2, द फ्लाई. इट इज फॉर दोज हु हैव नॉट रिटन इट, एंड जिन्होंने ये नहीं लिखा है वो लिखेंगे और न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे. एंड कीप योर पेंसिल शार्प, प्रॉपर गैप, विथ प्रॉपर हेडिंग्स, राइट डाउन नीटली. ये सब इंस्ट्रक्शंस आप हमेशा ध्यान में रखेंगे. सो व्हाट इज नेक्स्ट, हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू. सो चिल्ड्रन, आफ्टर वी हैव रिटन द स्पेल ड्रिल ऑफ आवर लेसन नंबर 2, द फ्लाई, वी विल डू दिस एक्सरसाइज. हम ये एक्सरसाइज करेंगे इन आवर नोटबुक, अपनी नोटबुक में ही, फ्रॉम अ न्यू पेज. न्यू पेज से ही हम लिखेंगे इसे. डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द हेडिंग्स, दैट इज classwork, lesson number 2, the fly, and this heading. Now I am telling you about this. Give one word for the following. This is the heading. ये हमारी exercise है. ये word meanings की तरह ही है, synonyms भी हैं. हमने इन्हें इस तरह से shuffle किया है या थोड़ा mold किया है कि these are your questions. ये आपके questions हैं and you have to answer. ये आपके answers हैं, आपको ये one word में answer देना है. So क्वेश्चन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वेरी स्मॉल, एंड देन यू विल आंसर. आप आंसर देंगे उसका टाइमिंग. सो ये आपको याद रखना है, लर्न करना है, या
अंडरस्टैंड करना है. सो in the third line you will write this heading, give one word for the following, and then you will start writing the exercise. At number 1 it is very small. very small मतलब बहुत छोटा. बहुत छोटा क्या होता है? tiny. so the answer is tiny. ये MCQs फॉर्म में या वन वर्ड फॉर्म में भी आ सकते हैं. आप ये लर्न भी करेंगे. दोनों तरह से हम पूछ सकते हैं इन्हें. At number 2 fail to remember. फेल टू रिमेंबर मीन्स जिसे याद रखना हम भूल जाएं. सो जिसे याद रखना हम भूल जाएं वो क्या होता है? फॉरगेट. सो आवर आंसर इज फॉरगेट. द क्वेश्चन इज फेल टू रिमेंबर, इट मीन्स फॉरगेट, भूल गए. सो एट नंबर 3 टू वेव समथिंग, कुछ लहराना. वेव मतलब लहराना, समथिंग कुछ. उस एक्शन को क्या बोलेंगे? फ्लैप. फ्लैप मतलब फड़फड़ाना या लहराना कुछ भी. So our question is to wave something and the answer is flap. So at number 4 to spread or apply something, कुछ फैलाना या apply करना, उसे क्या बोलेंगे? rub. The answer is rub. Spread मतलब फैला देना या apply करना, कुछ मलना या रगड़ना, that is called rub. इसे हम rub कहते हैं. So ये एक्सरसाइज थी, न्यू थी. ये वर्ड मीनिंग को ही हमने थोड़ा चेंज किया है. आई वॉन्ट टू रिपीट. वेरी स्मॉल इज द क्वेश्चन एंड टाइनी इज द आंसर. फेल टू रिमेंबर, फॉरगेट. टू वेव समथिंग, फ्लैप. टू स्प्रेड और अप्लाई समथिंग, रब. सो दीज आर द 4 वन वर्ड आंसर्स जो हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए लिखेंगे. सो व्हाट इज नेक्स्ट? लेट अस सी. So children, as today is Monday, so the homework giving day for our English subject. So what is your homework? Homework for 13th July 2020. Today is learn or revise the word meanings of lesson number 1, Mary and the Mouse. Means आपको या तो learn करने हैं अगर आपने नहीं किए हैं, और if you have already learned them, then you have to revise word meanings हैं जो lesson number 1 Mary and the Mouse के हैं. So the test will be taken of these word meanings on 20th July 2020, again a Monday. Monday को लिया जाएगा. नेक्स्ट मंडे इसका टेस्ट होगा और टेस्ट MCQs फॉर्म में होगा. सो MCQs की फॉर्म में टेस्ट होगा. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि किस तरह से होगा. So children, as I told you that the test of word meanings of lesson number 1 will be taken on 20th July. नेक्स्ट मंडे वो टेस्ट होगा MCQs की फॉर्म में. सो दिस इज द टेस्ट मैटर. ये 4 वर्ड मीनिंग्स हैं. दीज आर द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आर हियर. ये 4 वर्ड मीनिंग्स हैं टेस्ट मैटर के. मैटर है जो आपका लेसन नंबर 1 मैरी एंड द माउस. ये किस फॉर्म में होगा टेस्ट? आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल फॉर दैट. सपोज द मीनिंग ऑफ रॉन्ग इज, रॉन्ग का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस आर करेक्ट, नॉट करेक्ट, रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ये आपको टिक करना है. सो इस फॉर्म में ये वर्ड मीनिंग्स का टेस्ट लिया जाएगा. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन. दिस इज नॉट एट मच डिफिकल्ट. ये मुश्किल नहीं है. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट. That's all for our English class today. We will meet in our next English class, children. Till then, bye bye. Take care.